Good evening, friends. So, Jungle Rhythm is back again with another program on wildlife conservation. Today, we are going to talk about a very special subject connecting communities. The chapter for today is very special to my heart, meeting our Vishnois. So, uh, local communities play a very important role in wildlife conservation and forest protection. So, Vishnois have proved themselves through their sacrifice and their passion towards protection of their environment and protection of the black bucks in both Rajasthan and Punjab, which has been an example for many other communities. In this session, we will be meeting the Bishnois and listen to their stories directly from them. So I am very happy to have with me Dr. Oishimaya Sennag again, my dear friend and senior editor of World Atlas, who will be joining me to host the session. And over to you, Oishimaya. Welcome Thank, today evening. thank you, Imelda, for the very warm welcome. I'm also very excited to be part of this webinar. I would like to introduce the first speaker of the evening, that is Colonel Shaktiranjan Banerjee, sir. We are very privileged to have him with us. Banerjee, sir, has served the Indian Army as a commissioned officer for 26 years. He then served as a West Bengal State Director of WWF India for 9 years, and currently he is the Honorary State Director of Wildlife Protection Society of India. During the army postings in Rajasthan, Banerjee sir developed a very strong friendship with the people of the Bishnoi community. And soon he also became involved in wildlife protection activities with the Bishnoi people. So his contributions were recognized when he was awarded by the Akhil Bhartiya Jeev Raksha Bishnoi Sabha in 1989. Sir, please tell us about your experiences of working with the Bishnoi people, what you learned about their culture, and also your feelings when you received this prestigious award from the Bishnoi community. Over to you, sir. Well, this is actually I worked with this community for quite some times, and really I have learned so much about the conservation. So I really call them the sentinels of nature. There's no doubt on that. In my visit to the villages, I was it was a very welcome sight, and you see the black bucks roaming around, and Bishnois could go close. And if we go close, the black bucks will run away. It really proves that how much that close, that man animal, that closeness, that is very evident in this Bishnoi community. Well, this Bishnoi community, it's actually, if you go back, long back in 1580, is where you find the photograph of Jammuji, who actually started this Bishnoi community. The Jammuji, you can see with others, is one of those preachers. He was born in 1508 in a village, Pipasar, near Bikaner, that is in the Bikaner district. And then, from when he was a small boy, there was so much of drought, and he realized that only way to protect the nature, then only when the human beings can live. And that is why in 1542 he established this sect, and then from that he had given these 29 principles. They call it Unatis Dharam, Unatis, their ways of life. These 29 principles is what you can see in front in the TV screen. It is that various forms of the social life, your brotherhood, the women rights, and of course the green, be green, that is the don't cut green tree and do not harm animals. This is the thing which is followed even today, the 18 and 19 principles, and they do not cut any tree and neither they kill any animal. What they have taken, why this black buck and there is a special tree, khejuri tree. Khejuri tree is scientifically called the Prosopis cinerea. This is a very, very hardy tree, and they can grow in these desert regions with very small care.
Even with they call with little moisture and others, it can really grow. And but it is a slow growth. You can see a KGT, and this movement was, of course, in 1778 when Maharaja Abhay Singh had sent his men. You can see Girdhari Das, his minister, he was trying to cut tree, and Amrita Beniwal, she came first with her three daughters, pleaded them not to cut tree, and they embraced the tree and they were sacrificed. This way that day, this Khejrala village itself is known Khejrala in the Jodhpur Marwar district, is because of the khejri trees. And there were many Bishnoi villages only they had trees. And Maharaja had to find wood. So that is the only way to take away wood from there. Now 69 women and total of 363 people, of which 69 were women, they sacrificed themselves. Women came first. That is one of the very unique things of Bishnoi, that women are in the forefront. That's imagine from those age, not today, many ages back, when women were not treated anywhere at par with the men. But here they were ahead already. And that is one of the great things what this guru, their great guru had preached. And because of his preach, all this thing happened. And then after this, Maharaja himself came and asked for pardon. And then he pronounced that no Vishnoi village hereafter, there will be no any shikar or hunting and no cutting of trees. That is why they also have this Khejrala sacrifice. They always observe it every year in that village, and many people go. But unfortunately, this is not really been preached many ways. They have taken black buck and khejri trees as symbols. Otherwise, they protect all trees, all this thing. You can see the Bishnoi community here. They are standing, and they are what you call the black bucks. Generally, they are from a arid regions of Rajasthan, Haryana, Punjab. You can see as it is. You can see Shankarlal Bishnoi is going towards the village. That is how the Bishnois treat. They are very fond of animals, and these black bucks, they even eat in their fields, and they don't mind on it. And then these black bucks were easy to kill by the hunters because you could chase them by jeeps and other things, and you could just kill them. That is why the Bishnois are taken place. Also, the khejri tree, Prosopis cineraria, which is a very hardy tree. We can see that in that 1778 famous Kerala sacrifice or the people. And earlier also there were a lot of many sacrifices, but many history is not written on the Bishnois. That is why it is not known. Few things here and there people know about it, and that is what they are today, and they are protecting nature. That is in their blood. The community is ingrained into it, that not to cut a tree, not to kill animals, and that it doesn't mean only the black bucks. The nilgais come there, the chinkaras, they come there. There are so many animals. They will, and best is even the dogs. The feral dogs, we sometimes kill them. We are told that sometimes we will kill the feral dogs, but no, they were not happy. They said, no, sir, we don't kill any animals. But they protect the black bucks, and we'll soon see where they have been keeping in a village close to Ganganagar, where they protect them and they make them grow like a rescue center, and then they release them. Now there is a famous saying, and not only there is a film, Passing of the Buck. Now Passing of the Buck is basically a film on that how because of the Bishnois, the black bucks have been protected in India. But in Pakistan, in Sindh province, there used to be a lot of these black bucks, and at one time they had transported them, some of them, to Texas in USA, where they used to keep for hunting and all those things and protect them. And then whenever somebody wanted to go hunt, and they used to do control hunting. So from there, later again, when they had no black bucks in Pakistan, then Pakistan brought back some black bucks for release in Sindh province. And that is why the film is Passing of the Buck. It is wonderful film. If somebody can see it, you can have a look at it. And that is one shows that how the Bishnois have protected from ages. This is what great about the Bishnois. And I'm sure you will hear more about from the community themselves. They'll be coming.
So I would like to end here itself, and I will like to introduce Shankar Bishnoi, who is, you can see him looking towards the black box, because he is the person first when I went to village Dulpura to search for black box, and he was the one who guided us. Initially, he was apprehensive about army that we might come to kill them, but no, when he realized our intention was to save them, so that is why I tried to protect the black box there. I tried to help them, and I have gone to their other Dotarawali village where the great All India Jiv Raksha Bishnoi Samaj's Pradhan, then Sant Kumar Bishnoi, is no more today. He used to really like me, and I have gone with him so many times. And I also got to the people. And there is another, just one aspect I like to make a point. There is a place, Mukam, in Bikaner. That is where there is a place, Samrathal, where the Guru had preached. And that's why the Samrathal always keep high. And every Shivratri occasion, all Vishnuis come there, concentrate there. And the awards are also given for the wildlife. So those who are a protection of wildlife. That is why you can see that that certificate of award to me. I mean, that is the greatness of them, that they have that in life they have got this what we call wildlife conservation, and even in their Samrathal temple, that where Guru had preached, they come and everybody drops grain there, which to be fed throughout the year to the animals, whether it is black buck, whether it is nilgai, whether it is or any animal. That is the greatness. So I introduced Shankar Lal Bishnoi here, who has been a great help to me, and he has guided me all along. And that is why not only here, I have been to the Punjab, Dotarawali village and that side, all these areas where Vishnu have been protecting. And for your information, Punjab had declared 13 villages as sanctuary because of these Vishnu villages. And there no forest guard is required because Vishnus are themselves forest guards. So I introduced to Shankar Lal, who will say something about it. Shankar, go ahead. नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। मैं शंकर लाल बिश्नोई राजस्थान जिला श्री गंगानगर से हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हुआ हूँ। बिश्नोई समाज क्या है, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 570 वर्ष पूर्व राजस्थान के नागौर जिले में बसर गांव में भगवान गुरु जम्बेश्वर यानी जाम्बू जी का जन्म हुआ था। उस समय बहुत भयंकर अपराध, भ्रष्टाचार, चोरी, अकाल, अनेक कुरीतियां समाज में विचलित थी। जाम्बू जी राजपूत परिवार से थे और जाम्बू जी के माता पिता के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब इनके माता पिता जब बुजुर्ग अवस्था में थे तभी इनके ये जाम्बू जी का जन्म हुआ था। तो उस समय के हालात को देखते हुए भगवान जाम्बू जी ने राजपूत संप्रदाय से अलग हट करके एक 20+9 29 सूत्र की ये श्रृंखला बनाई। वो आदमी इन 29 नियमों को धारण करता था, वही बिश्नोई कहलाया। जाम्बू जी खुद राजपूत परिवार से होने के नाते नाते इन्होंने अनेक जातियों के लोगों को इस समुदाय में जोड़ा। और कुछ समय बाद जब इनके माता और पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने सारी संपत्ति गरीब लोगों में बांट करके, ये उस समय के इनके पिताजी लॉर्ड जी पवार गांव के, जिसे आजकल हम विधायक कह देते हैं या लंबरदार कह देते हैं, उतनी बड़ी जागीरदार थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति गरीब लोगों में बांटकर समराथल दौरे पर आकर ये बैठ गए थे। जाम्बू जी महाराज 7 वर्ष की अल्प आयु तक मौन रहे थे और 27 वर्ष तक इन्होंने गौवें चराई थी। उसके बाद 51 वर्ष तक समराथल दौरे पर इन्होंने अलग जगाई थी और इस धर्म का प्रचार करते करते उस समय के तत्कालीन कई राजाओं के, दिल्ली के राजा सिकंदर लोधी को जब ये एहसास हुआ और सिकंदर लोधी जी को उनके मंत्रियों ने बताया कि राजस्थान में कोई पाखंडी लोग बैठे हैं, तो खुद सिकंदर लोधी गांव के अंदर चल कर आए और अपने हाथी को दूर छोड़कर गुरु महाराज के समाधि स्थल के पास जाकर बैठ गए। लोगों को कहा, भाई यही है क्या आपके भगवान जाम्बू जी? तो जाम्बू जी ने उनको पूछा, भाई आपका क्या कारण है? गुरु जी आप बतलाइए, मैं किस पर आया हूँ। गुरु महाराज जाम्बू जी ने उनका घमंड चूर करने के लिए उस साथी को यानी गडरिया भेड़िए के रूप में परिवर्तित कर दिया।
तो सिकंदर लोधी ने कहा, देख लोगों को बताया कि ये गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं अभी भेड़िए पर आया हूँ, मेरे साथ 10 आदमी चल के देख लो। तो जाम्बू जी ने खुद ही प्रमाण देने के लिए कहा, आप अपने टेंट में जाकर चेक कीजिए। जब सिकंदर लोधी कुछ लोगों को लेके वहां गया तो उस हाथी का उसमें भेड़िया और बिडरिया ही मिला। सिकंदर लोधी ने अपना अहंकार तोड़कर फिर वो महाराज की शरण में आया और विष्णु धर्म का अनुयायी बन गया। इस धर्म से प्रभावित होकर के जाम्बू जी के उन निश्चयों से वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए आज पूरा विश्व इन्वायरमेंट पर काम कर रहा है। तो जिससे प्रभावित होकर जोधपुर जिले के खेजली ग्राम में, अब जैसा बनर्जी साहब ने बताया था कि राजा अभय सिंह के महल के अंदर ईंट पकाने के लिए कोयले की जरूरत थी। तो राजा अभय सिंह ने अपने मंत्री से कहा कि आप यहाँ ईंट पकाने के लिए कोई लकड़ी की व्यवस्था करो। तो राजा का मंत्री गिरधर दास भंडारी बिश्नोई लोगों से मतलब द्वेष की भावना रखता था। उस द्वेष की भावना रखते हुए राजा को ये कहा कि महाराज आप हुक्म दो, तो यहाँ पर कुछ लोग गांव में खेजड़ी की बहुत ज्यादा लकड़ी है और कहो तो मैं महल के लिए ले आ सकता हूँ। राजा जी ने ये कहा, लकड़ी लाने के लिए आप किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना। लेकिन गिरधर दास भंडारी ने यह बात नहीं बतलाई और सुबह आज से लगभग 270 वर्ष पूर्व रात के 4 बजे के टाइम अपनी फौज को लेकर के खेजड़ी की कटाई शुरू कर दी। उस समय अमृता देवी अपने घर के बाहर से अपने सफाई के कह देते हैं उन सब हरी निकाल रही थी। तब अमृता देवी को पेड़ काटने की आवाज आई तो उसने अपने पति जी को जगाया। पति को जगाने के बाद सारे लोग वहां जाकर के और उस मंत्री गिरधर दास भंडारी से कहा कि हम विष्णु लोग हैं और हम पेड़ काटने नहीं देंगे। उन्होंने अमृता देवी ने कहा कि सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, यानी सिर के बदले एक आदमी के बदले एक पेड़ बच जाता है तो भी ये सस्ता है। लेकिन गिरधरलाल भंडारी घमंडी था और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और अपना काम चालू रखो। सबसे पहले माँ अमृता देवी बिश्नोई कास्ट ऑफ बेनीवाल, इनका गांव जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर था। जैसे ये घटना का पता लगा अमृता देवी के पीछे 3 इनकी बेटियां इमा, गामी और इमरती तीनों शहीद हो गई। इस घटना का जब लोगों को पता लगा तो उस एरिया के 84 गांव 84 विलेज सारे लोगों को पता लगने के बाद 363 लोग एक एक करके पेड़ों पे चिपक गए। इस घटना का जब पता राजा अभय सिंह को चला तो वो खुद अपना उस समय का ताम्र पत्र कहते हैं, आजकल हम इसको गवर्नमेंट आदेश कह देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर कह देते हैं, ये लागू किया कि हमारी बहुत ज्यादा गलती हो गई है। आज के बाद मैं या मेरा भी कोई भी मंत्री बिश्नोइयों के एरिया में ना तो वृक्ष काटेगा ना ही कोई आज तक शिकार करेगा। उसके बाद वो राजा अभय सिंह ने प्रमाण पत्र लागू करके उस गांव को लागू कर दिया। ये बिश्नोई समाज का भगवान जाम्बू जी के दिए हुए वचनों पर और आज समाज इसी पर अपना कामयाबी है और चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल लाल जी, सुन के हम लोग मोहित हो गए। So we also have with us Rajiv Bishnoi ji, son of Shankar Lal Bishnoi ji, who is a Sayak Van Rakshak or the assistant forester of the forest department of Rajasthan. So he will be speaking about wildlife conservation, issues about deforestation and wildlife poaching. So inviting Sri Rajiv Bishnoi ji. नमस्कार जी, नमन प्रणाम। मैं राजीव बिश्नोई वन विभाग में कर्मचारी हूँ। हमने पर्यावरण और वन्य जीवों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। और इन दिनों हमारी एक फ्लाइंग टीम गठित हुई है, उसके अंदर हमने भी खेजड़ी की जो कटाई हो रही है उसमें 18 मशीनों पे हमने जा के कार्रवाई की है। और वन्य जीव शिकार संबंधित भी बहुत सी कार्रवाई की है। बिश्नोई समाज हमारे साथ है। वन्य जीवों और पर्यावरण को बचाने के लिए बिश्नोई समाज का हमेशा ही हमारा सहयोग रहा है। उसके अंदर बिश्नोई समाज में
ये बात तो लगभग सभी लोगों को पता है। 363 बिश्नोई शहीद हुए थे खेजड़ली के लिए, जो चिपको आंदोलन के नाम से मशहूर भी हुआ था। और बिश्नोई समाज हमेशा ही जीवों और पर्यावरण के लिए अपना सहयोग अपनी जान पर खेल के भी करते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और वन्य जीवों को बचाने के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बताए हमें, वो केवल जाति मनुष्य पे ही नहीं, वन्य जीवों और पर्यावरण पे भी लागू है। इस चीज़ को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। जो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 रूल बताए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग आज हमें पर्यावरण को बचाना है, वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है। उसमें बिश्नोई समाज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार कार्रवाई करते हुए हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, तो उससे हमें भी पीछे न हटकर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखनी है। और बिश्नोई समाज हमेशा ही अग्रणी रहता है पर्यावरण और जीवों को बचाने में। इस बार लॉकडाउन में भी हमने कुछ बिश्नोई मंदिर में सभी लोगों के सहयोग से 5000 खेजड़ी के पौधे तैयार करवा के एक नर्सरी का रूप तैयार किया, और वो हमने जुलाई अगस्त के माह के अंदर सभी को वहाँ से वितरित किए थे, ताकि पर्यावरण को साफ रखा जा सके, खेजड़ी की जो संख्याएं कम हो रही है, खेजड़ी को बचाया जा सके। और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि बिश्नोई समाज को वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति अच्छा कार्य कर रहा है। और इससे सभी समाज के भी लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे हैं और सहयोग करने लगे हैं। हर जाति के लोग पर्यावरण को बचाने में भी लगे हैं और वन्य जीवों को बचाने में सहयोग करने लगे हैं। प्रकृति और वन्य जीव बचे रहेंगे तो प्रकृति का आपदा ही नहीं आएगी। वन्य जीवों को बचाएंगे तो ऐसी महामारियों में भी हमारा भगवान पूर्ण सहयोग करता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी से पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने के लिए सर्व समाज और बिश्नोई समाज तो हमेशा अग्रणी रहा है, तो इसमें हमारी मदद करें। और सबको धन्यवाद। So next, Rajbala Bishnoi ji joins us in this conversation. She's a school teacher, and in this video, she will tell us about the contribution of Bishnoi women in protecting wildlife and environment. Over to you, Rajbala ji. सभी को नमस्कार, नमन प्रणाम। मेरा नाम राजबाला बिश्नोई है। मेरा अभी हाल ही में 2nd ग्रेड टीचर पंजाबी विषय में चयन हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है। महिलाओं की जैसे बात करें तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, पुरुषों से कंधा मिला के चलती हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं का अपना एक विशेष योगदान है। तो पर्यावरण और जीव रक्षा की जैसे बात की जाए तो पर्यावरण रक्षा में महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है, और इसके लिए पूरा विश्व ये जानता है कि कैसे महिलाएं जो हैं वो पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देती हैं। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध घटना है 1730 की, उसमें जोधपुर के महाराजा होते हैं, वो आदेश देते हैं मंत्रियों को खेजड़ी ग्राम से कि खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो काट के लेके आओ, लकड़ी की आवश्यकता है। तो जैसे ही मंत्री जाते हैं खेजड़ी ग्राम में, तो जैसे बिश्नोइयों को पता चलता है तो वो सभी पेड़ों से चिपक जाते हैं कि नहीं, हम पेड़ नहीं कटने देंगे चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो मंत्री बहुत समझाते हैं लेकिन बिश्नोई नहीं मानते। सभी एक एक पेड़ों से एक एक दो दो चिपक जाते हैं कि नहीं, हम सिर सांटे रुक रहे हैं तो भी सस्तो जान, यानी कि हमारा अगर सिर भी कट जाए और एक वृक्ष की रक्षा होती है तो हम करेंगे। जैसे जैसे 84 गाँवों के पास में बिश्नोई होते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसे खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो वो सभी बिश्नोई इकट्ठे हो जाते हैं और सभी पेड़ों से चिपक जाते हैं कि नहीं, हम पेड़ नहीं कटने देंगे चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो मंत्री भी घबरा जाते हैं कि ये ऐसे क्या हो रहा है। तो राजा के पास बात पहुंचती है कि ऐसे
जो बिश्नोई हैं वो कट रहे हैं, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दे रहे। तो राजा आदेश देते हैं कि नहीं, ऐसे हत्याएं हो रही हैं तो पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो राजा उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा देते हैं, और भविष्य में भी कहते हैं कि खेजड़ी ग्राम में या बिश्नोइयों के गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, ऐसा आदेश दे देते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि अपने प्राणों का बलिदान भी देकर अगर एक पेड़ की रक्षा होती है तो वो अपने वो करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि आज से इतने साल पहले भी वो बिश्नोई इतने जागरूक थे कि एक पेड़ जो है वो कितनों को सांसें देता है, जो हमारी सांसें हैं वो कितनों को देता है, और ये शुद्ध वातावरण जो अपने को मिलता है वो पेड़ों से ही मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हमारे बिश्नोई समाज में 29 नियम है, तो 29 नियमों में ये भी नियम है कि हरे वृक्ष नहीं काटना और जीवों पर दया करना, ये 2 नियम भी मुख्य रूप से हैं उसमें। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने इतने समय पहले ये संदेश दे दिया था कि हरे वृक्षों को नहीं काटना, जीवों पर दया करना, ये सब कुछ उस टाइम ही दिया था। और उनका पालन जो है वो बिश्नोई समाज के लोग करते हैं। बिश्नोई समाज की महिलाओं में अगर जीवों पर दया की बात करें तो जैसे ऐसे है कि जैसे मतलब एक महिला जो है वो अपने बच्चे को जैसे पालती है, ऐसे कोई किसी जीव पर अगर कोई संकट आता है तो उसकी भी वैसे ही रक्षा करती है महिलाएं। तो अपने बेटे को अगर दूध पिला रही है तो वो ना पिला करके अगर कोई हिरन का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है तो वो अपना स्तनपान भी करवा देती है। ऐसी बिश्नोई समाज में महिलाएं जो है वो जीवों पर दया करती हैं ऐसे। तो हमारे गांव की बात करें जैसे, तो मेरा ससुराल है दुलपुरा गांव, तो वहाँ पे भी गौशाला है, एक गौशाला खोल रखी है। उसमें जैसे आवारा पशु होते हैं, गौएं जो छोड़ देते हैं, बछड़े होते हैं, तो उन सबको वहाँ पे रखा जाता है। और सारा गांव जो है उस गौशाला में गऊओं की सेवा करता है, और महिलाएं विशेष तौर पर सुबह जल्दी उठ के और गौशाला में गऊओं को चारा डालना और उनको पानी पिलाना, उनका गोबर साफ करना, ये सारे काम महिलाएं जो है करती हैं, उन गऊओं की सेवा करती हैं। और ऐसे भी महिलाएं जो हैं उनमें कहती हैं कि हमारे गऊओं की सेवा करने से हमारे ऐसे काफ़ी सारे रोग थे जो दवाइयों से सही नहीं हुए थे, और हमारे गऊओं की सेवा करने से वो सब कुछ सही हो गया। तो गाय का हमारे बिश्नोई समाज में विशेष महत्व है। हमारे सभी घरों में लगभग गऊएं पाली जाती हैं, और गाय के घी का, दूध का और दही गाय के का ही मतलब प्रयोग किया जाता है। और घरों में जैसे हवन होता है तो गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको जला करके उसके ऊपर गाय का घी डाला जाता है और हवन किया जाता है। हर बिश्नोई के घर में हवन होता है और इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। तो गाय जो है हमारे जीवन में विशेष स्थान रखती है, और हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय हमारे गौशाला में जैसे है, तो अगर कोई बीमार गाय भी हो जाती है तो उसकी भी एकदम तन मन से सेवा की जाती है। तो बिश्नोई समाज की महिलाएं, पुरुष सभी जो है वो विशेष रूप से गाय की सेवा करनी और जीवों पर दया करनी, ये सब जो है उनके खून में ही ऐसा है। जब जैसे बच्चा छोटा होता है तो हमारे 30 दिन के बाद में जैसे बिश्नोई बनाया जाता है बाल दे करके, तो तब से लेकर के बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बिश्नोई समाज के जो नियम हैं, जो बातें हैं उसको सिखाई जाती है। और उसके साथ ही जो है वो उसके दिमाग में सब कुछ ये शुरू से ही सेट होता है कि हाँ ऐसे ऐसे पर्यावरण की रक्षा करनी है, गऊओं की रक्षा करनी है और उनकी सेवा करनी है। ये सारे गुण जो है ये शुरू से ही बच्चों में डाल दिए जाते हैं। धन्यवाद। नॉन प्रणाम, मेरा नाम संगम बिश्नोई, मैं स्पेंगल पब्लिक स्कूल में क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मुझे मोर पक्षी बहुत पसंद है। मैंने गंगानगर में हमारे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मैं उनमें रोज पानी डालता हूँ, और हमारे घर के आगे भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैं उनमें भी रोज पानी डालता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पेड़ पौधों में पानी डालूं। तो इसलिए मैंने
ननिहाल में भी पेड़ पौधे लगाए हैं, दो पौधे लगाए हैं जामुन के। और मैं जब भी आता हूँ ननिहाल में तो हमेशा उनमें पानी डालता हूँ। और हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें अच्छी हवा मिलती रहे और हम स्वस्थ रहें। और पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद। Thank you, Rajbala ji. So we also have with us Subhash Vishnoi ji. नमस्कार, मैं सुभाष बिश्नोई, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा श्री गंगानगर और सहायक लेखाधिकारी राजस्थान सरकार श्री गंगानगर। गुरु जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ में दीक्षा देते समय सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, और उनकी सारी फिलॉसफी इसी बात पर ही आधारित है। जैसे उन्होंने कहा है कि काय न पाले जीव दयो, मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो, ओजू मंडल छायो। उसके बाद कहा हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी तहाँ हमारा वासा। और इससे भी आगे बढ़कर हमारे यहाँ दो उक्तियां प्रसिद्ध है। पहली यह है कि वर्जत मारे जीव तहाँ मर जाइए, और दूसरी है कि डाण दिया सू पण घटे, मूल न देवा डाण, सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इन दोनों का मतलब यही है कि जहाँ पेड़ों और वन्य प्राणियों की जान पर खतरा हो वहां खुद का आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए, वहां अपना बलिदान दे देना चाहिए इनको बचाने के लिए, और इनका बचाना ही प्रकृति का संरक्षण है। इसके अलावा उन्होंने आगे नियमों में बात दी कि पानी वाणी ईंधनी दूध जलीजे छाण, अर्थात वाणी भी छाण करके बोलनी, और ईंधन लकड़ी, सूखी लकड़ी जो बालन के लिए प्राप्त करते हैं अपने, जिनको जलाने के लिए काम में लेते हैं, उनमें भी कोई जीव नहीं हो, उनको भी छान लेना चाहिए। और वाणी छान कर बोलने का मतलब यह है कि वाणी से भी प्रदूषण होता है। अतः प्रदूषण का, पर्यावरण का इतनी बारीकी से गुरुजी ने अध्ययन करके हमारे को बताया। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु से भी बहुत पहले उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में जान होती है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करो, इसका संवर्धन करो और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखो। धन्यवाद। Our next speaker is Bhavna Bishnoi ji. She will be speaking about the Khejri Mela, which is a traditional fair held by the Bishnoi community to celebrate nature and remember those who sacrificed their lives for protecting the environment. So Bhavna Bishnoi ji, आपको नमस्ते और स्वागत है। और आप थोड़ा अपने बारे में बोलिए और फिर जो खिचड़ी मेला होता है आप लोगों के डिजिटल कम्युनिटी का, उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। सभी को नमस्कार। मैं भावना बिश्नोई राजस्थान गवर्नमेंट के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और आप सभी को बिश्नोई समाज द्वारा जो मनाए जाने वाला खेजड़ली मेला है उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। यह मेला पेड़ों की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस मेले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, यज्ञ में आहुति देकर पेड़ों की रक्षा की शपथ ली जाती है। यह मेला हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस मेले की खास जो विशेषता ये है कि यहाँ पर प्लास्टिक पूर्णतः बैन रहता है और कपड़े की थैलियां, कागज की थैलियां इत्यादि का यूज होता है। और प्रसाद के नाम पर केवल घी और सूखा नारियल, जिसको खोपरा कहते हैं, वो ही चढ़ाया जाता है। और अनावश्यक किसी भी प्रकार का कचरा वहां पर कचरा नहीं किया जाता है। और पक्षियों के लिए चुगा, दाना इत्यादि एकत्रित किया जाता है। आज भी खेजड़ली के जो मेले हैं, गांव है, वहां पर खेजड़ी के पेड़ बहुत दायित्व में है। और सन 1730 में जोधपुर के महाराजा को जब नया महल बनाना था तो इस महल के लिए ईंटों के लिए, ईंट पकाने के लिए, चूना इत्यादि पकाने के लिए पेड़ों की जरूरत थी, लकड़ी की जरूरत थी। तो पेड़ काटने के लिए उसके मंत्री और सैनिक खेजड़ली गांव पहुंच गए। इस पर वहां पर गांव में जो अमृता देवी बिश्नोई है और अन्य ग्रामीण थे, सभी ने वहां विरोध किया और मंत्री और सैनिक नहीं माने। तो अमृता देवी बिश्नोई ने सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान कहते हुए अपनी बेटियों के साथ पेड़ों से चिपक गई
और यह बात आस पड़ोस के गांव में भी फैल गई। सभी लोग आकर धीरे धीरे वहां इकट्ठे होने लगे और देखते ही देखते 363 लोगों ने सैनिकों 363 लोगों को सैनिकों ने पेड़ों के साथ साथ ही काट दिया। वर्तमान में भी बिश्नोई समाज द्वारा प्रतिवर्ष शहीदों की याद में जगह जगह पेड़ लगाए जाते हैं और उनके बलिदान को याद करते हुए पर्यावरण की जो संगोष्ठी है और सम्मेलन है आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद, बहुत अच्छे बोले, सुन के बहुत अच्छा लगा। सर जैसे मैं क्या है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल है, गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियां रहती है यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं जैसे हमारे पास पूरा परिसर है और वहां पर मैंने खूब सारे, जैसे यहाँ पिछले 5-6 साल में मैंने कम से कम 200 पेड़ पौधे लगाए हैं। और उससे पहले जैसे शंकर लाल जी से जब मिले थे 2009 में हम पहली बार, तब उस टाइम में जब जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहां भी हमने 50 के लगभग पेड़ तैयार किए थे और 4-5 साल वहां मैं रही मेरी पोस्टिंग। उसके बाद में दूसरी जगह आ गए तो यहाँ भी मैंने लगभग 200 के लगभग पेड़ लगाए हैं। बहुत बढ़िया, ये आप करते रहिए। ये मेरा बेटा है, ये ज्वाइन कर रहा है। अच्छा। क्यों नहीं, नमस्कार नमस्कार। नमन प्रणाम सबको। जो आपके जनरेशन के जो लोग हैं, आप लोग आपके दोस्त, आप लोग बिश्नोई है, जो आप लोग ये पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं अभी बचाने के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मैंने लगाए हैं। आपका सबसे प्यारा जानवर कौन सा है? आपको कौन सा जानवर सबसे प्यारा लगता है? मोर। मोर, अच्छा, मोर सभी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी बोले मोर, वो उनका पोता जो है वो भी बोले मोर पसंद है बहुत। आपके वहाँ पे मोर मिलते हैं? मिलते नहीं, जहाँ पहले रहते थे हम वहाँ पे पास में काफी पेड़ हुआ करते थे तो वहाँ पे मिलते थे। अब यहाँ पे हमारे हॉस्टल में तो पेड़ है लेकिन आस पास में हरियाली कम है, खेत है, इसलिए वो आते कम नहीं है। और आपने ब्लैक बग देखे हैं सामने से? हाँ, खेत में देखे थे। खेत में देखे हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। अब बैठे रहिए मम्मी के साथ, सुनते रहिए बातें, हम लोग भी। We also have with us Ms. Bhavna Sharma, who has worked extensively with the Bishnoi community as a part of her research and as well actively into audiovisual work as well as making documentaries, etc. So, Bhavna ma'am, we would like to understand, you came from a urban society and you went there to research on the contribution of Bishnois there. So what were your experience and what were your special feelings when you were working with them? Yeah. So, okay. All right. So, good evening, everyone. So basically, it's been a few years that I got an opportunity to get associated with Bishnois from a particular belt in Rajasthan, Sri Ganganagar. And I actually come from the same place, but I was away doing my graduation, post-graduation, and my course in mass media from Delhi. And while I was there, I realized that I had some immediate topics which need a very specific coverage because there are very few examples in the country which can be followed with respect to conservation. And when it comes out like a community as a whole, then it was right there in my neighborhood in terms of Bishnoi community. So I got in touch with the local people who were working as voluntarily. They were working precisely into conservation of wildlife in my immediate area. It wasn't their job as such, but it was a part and parcel of their culture and society, which was kind of very amusing and amazing for a normal person coming from a city. Because unless you're not being paid for something, then also you continue to do it in such a passionate way was something which I thought could be set as an example for the entire world to see that our Indian culture has a community specifically dedicated to conservation. And that's how I got in touch with the Bishnoi community. And Shankar Lal ji and Om Bishnoi ji, I've met all of them
The best part was their hospitality is amazing. Apart from loving, it's not just that they love nature and they just love animals. They're very open to people who come from an outside environment, and it's a very hospitable community, and that reflects for all their ways of life. They are simple people, but with great amount of warmth and compassion for all the living beings, not just animals and nature. It's a part. It's a part of their culture that they kind of treat lives very equally and very seriously and very passionately work towards it. That reflects in the ways that the kind of food that they have, the kind of social customs that they have. Generally our customs, our religious customs are very mythological based or historically based, but the customs in Bishnoi community are very specifically based towards nature and its conservation. It's very new in approach, though it comes from around 14th 15th century, when their gurus came and started working. Guru Jambeshwar came into picture, but though he was a very far-sighted person, I think, and his rules and his ways and his tenets that the Vishnuis follow today is something which, if a few more communities ahead with, it will work really well for our country's future in terms of nature conservation. Yeah. Thank you, Bhavna, for sharing such beautiful thoughts. It's been Thank really you. pleasure listening to you, and thanks all. So Yeah. we conclude here. तो शंकरलाल जी, आप थोड़ा बताइए कि आप सभी को जो बिश्नोई समाज की तरफ से क्या आप संदेश देना चाहेंगे पेड़ पौधों पर्यावरण को बचाने के बारे में? मैं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह बिश्नोई समाज ने वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए कार्य किया है, वैसे सारे लोगों को आगे आकर के इस संसार के पर्यावरण में हमारा सहयोग करना चाहिए। अकेला आदमी या अकेला गाँव या अकेला समाज कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सारे लोग हम इस मामले में जुड़ जाएंगे, इस मिशन में जुड़ जाएंगे, आज पूरा वर्ल्ड इस मुहिम पर चल रहा है। कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जाके देख लो, पेड़ों की देख लो, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और देश की हालात क्या हो रही है। ये कोरोना जैसी भयंकर बीमारी क्यों फैल रही है? हमारा पर्यावरण से खिलवाड़ होने का मूल कारण ही ये दुख का कारण है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं तो पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ भी किसी भी बिश्नोई को भगवान जाम्बू जी की दया से कोरोना कभी नहीं हुआ है, ना होगा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जिन नियमों पे हम चल रहे हैं, उस रूल्स को आप अपना कर देख लीजिए, डॉक्टर्सों को देख लीजिए, साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि जाम्बू जी द्वारा बताए गए नियम वो कोई एक ऐसे स्टिक प्रमाण थे जो आज वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं। उस समय भगवान जाम्बू जी ने, हमारे लोग पढ़े हुए नहीं थे, राजस्थान में मरुधरा के लोग थे और राजस्थानी गूढ़ भाषा बोलते थे, इसीलिए उन्होंने उस समय ये कह के बताया कि पेड़ों को काटना पाप है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे समाज में पढ़ाई है, शिक्षा का हुआ है, तो इस पर अभी शोध करने से पता लगता है कि पेड़ काटने से हमारी कितनी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अगर हम हवन करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर रही है। ये सारा शोध भगवान जाम्बू जी के द्वारा हुआ, रूह से ये बिश्नोई समुदाय बना। तो मेरा ये लोगों से निवेदन है कि आप भी भगवान जाम्बू जी के बताए 29 नियमों के पालन करके और बिश्नोई समाज के साथ मिलकर के इस पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग करें। ठीक है, धन्यवाद शंकरलाल जी, बहुत अच्छे बोले हैं। और भावना जी, आपको भी क्या बोलना है सभी को, आप कुछ बोले। मेरा सभी से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्रत्येक जीव को जीने का हक है, तो सभी जीवों को जीने का मौका दें और उनकी हत्या ना करें, उनको बचाएं, दाना पानी उनके लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था करते रहें और जो नेचर का जो इकोसिस्टम है वो बना रहे। बहुत सुंदर, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। और अभी बैनर्जी सर, आपको प्लीज आप कंटिन्यू करें, आप हमको बोलिए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द बिश्नोई। सो
You have interacted with them, you have worked with them, you have a lot of experience about Bishnoi culture. So please tell us what we can learn from them. Well, if we go through this, what I have seen about the Vishnu Samaj and what we have seen today with the actual local speaking, you know that this is the Guru. That's imagine when he was about 1500 AD. That's the time he has come and preached it. He is one of the great preachers, as we have many preachers we have. But he has gone on a unique way, and he has put priority on conservation of nature and natural resources. And this, the Vishnu Samaj is ready to protect it even today. Not only that, if you read the 29 principles carefully, you see that it includes your form of brotherhood. It is about the how the women's rights. So many things he has talked about. And if you take about even 10 principles, I think the world would have been found a different place today. I wish that would have taken place. The other point I have seen that, like the Bishnoi women, the way they have come forward. Now I know of this even when I used to be going to the villages and all. I have seen that the black buck, the mother has been killed by a thakur or something, those shooters. The woman jumped on the fawn and protected the fawn along with her own breast milk, her own child. She has brought up this. I have seen example in these villages. I have come to know this. I have gone round, and not only that, they had a very unique system of the tractors would be going around the village, the khetis, their cultivated areas, and they would search for any animal which is sick or killed or maybe injured. And I remember once, and they pick it up in the truck and they bring it for what do you call veterinary care and other things. They call veterinary doctors. They spend their own money and do all this. I remember once a black buck which was caught in a trap, and this trap trying to pull it out. So in that process, its whole hoof was out, and I could see it's only the bones. I was taking so pity on it. I requested them. Shankar knows about it. Yes, in that please, why don't you put an end to its life? They said, no, sir, we can't do that. We'll have to protect it, keep it, and we'll keep it in our own, like our own baby if it can't move around. And that is the concept. If you see our conservation of nature, natural resources, today we are fighting. We are talking about climate change. We are talking about so many other things today. Would have been, they have given a correct, perfect example. That is what I believe. And the world would have been totally different if we had followed their gurus, those principles. Thank you. Thank you, sir. Really, there's so much to learn from them, and what an amazing culture they have. Really, I mean, it's very unique. Nimanuda, over to you now. Yes, Thank you. Yeah, Thank you, Ishmaya. Yeah. Thank you, Shankar Lal ji. Thank you, Bhavna My side, madam. Thank you. Thank you, my side. राजीव जी, सुभाष जी, राजबाला जी, My हम लोग के साथ आने आने के लिए हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग ऐसे बातचीत जारी रखेंगे। आप लोगों का आज का जो तजुर्बा, आज का जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किया, वो बाकी सारे समुदाय के लिए एक एग्जाम्पल है। तो thank you all audience for viewing this show. There is some takeaways. Live a very simple life, organic life. That is very key ingredient of living healthy, especially in the corona times of today. That is a great takeaway that Shankar Lal ji has taught us today. Another thing, Bhavna madam has spoken about plant more trees. Plant more trees means cleaning up the air, more oxygen, and a better life. Protect all life. Protect wildlife. Protect life means maintaining the ecosystem balance. If ecosystem balance is maintained, all other life forms takes its own individual place, and we will have a very balanced and a healthy life.
So thank you all for joining tonight. It's been a great opportunity to interact with the local communities directly as we have done today. We will come back with another chapter on jungle rhythm very soon. Thank you and Shubharatri. हाँ सर, एक शायर है, अगर ना मिलते बोलिए। इस जीवन में लेके जन्म दोबारा, जन्म का साथ है हमारा और हमारा, बिल्कुल मिलते रहेंगे इसी तरह। वाह बहुत बढ़िया। शुभ रात्रि, नमन प्रणाम। शुभरात्रि। Namaste. बाय।